عام انتخابات کے نتائج پر سیاسی جماعتوں نے احتجاج کی کال۔ تحریک لبیک پاکستان کا آج ریلی کی صورت میں الیکشن کمیشن آفس جانے کا اعلان ہے۔ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی الیکشن کمیشن آفس کے باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے۔ مزید جانتے ہیں عاجز جمالی سے۔ عاجز، کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی دیکھیے، اس وقت الیکشن کمیشن کے باہر سخت سیکیورٹی کے انتظامات ہیں۔ پولیس کی بھاری نفری یہاں الیکشن کمیشن کے باہر موجود ہے۔ الیکشن کمیشن کا جو مین گیٹ ہے اس کے باہر بیریئرز لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہاں پہ اب کچھ سیاسی کارکنوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کی جانب سے ایک ٹرک لگا دیا گیا ہے جس پہ اسپیکرز نصب ہیں۔ یہ یقیناً اس احتجاج کی تیاری ہے جو جماعت اسلامی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کی جانب سے بھی آج 3 بجے الیکشن کمیشن کے باہر پہنچنے کا اعلان کیا گیا تھا۔ 3:30 بجے جماعت اسلامی نے الیکشن کمیشن کے باہر پہنچنے کا اعلان کیا تھا۔ ٹی ایل پی نے بھی اعلان کیا تھا، البتہ ٹی ایل پی کے جو لوگ تھے نمائش چورنگی سے ان کو نکلنا تھا، ان کو نمائش چورنگی پر ہی پولیس نے روک دیا ہے۔ البتہ یہاں پر الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر جماعت اسلامی کے احتجاج کی اس وقت تیاریاں ہو رہی ہیں۔ لاؤڈ اسپیکر نصب کر دیا گیا ہے، کارکن پہنچنا شروع ہو گئے ہیں، لیکن پولیس کی ایک بھاری نفری ہے جن کے ساتھ بم ڈسپوزل اسکواڈ بھی ہے۔ اس کے علاوہ واٹر کینن کو بھی یہاں پر طلب کیا گیا ہے پولیس کی جانب سے، جس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ اگر یہ احتجاج کنٹرول سے باہر ہو گیا تو یقیناً پولیس لاٹھی چارج کر سکتی ہے، واٹر کینن کا استعمال بھی کر سکتی ہے۔ یہ اس وقت صورتحال ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر۔ پولیس بالکل الرٹ کھڑی ہے۔ البتہ ابھی تک جماعت اسلامی کے جو احتجاج ہے وہ شروع نہیں ہوا ہے یہاں پر، نہ پی ٹی آئی کے کارکن یہاں پر پہنچے ہیں۔ پی ٹی آئی کے کچھ کارکن بھی یہاں گھوم ضرور رہے ہیں، لیکن باقاعدہ نہ تو اب تک پی ٹی آئی کی جانب سے احتجاج شروع ہو سکا ہے، نہ جماعت اسلامی کی جانب سے شروع ہو چکا ہے۔ البتہ پولیس منتظر ہے اور احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ احتجاج کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ عاجز جمالی ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کی الیکشن کمیشن تک ریلی، پولیس کی نمائش کے مقام پر شرکا پر لاٹھی چارج بھی سامنے آیا ہے۔ نمائش چرنگی پر جمع کارکنان کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ اب کیا صورتحال ہے جاننے کے لیے بات کریں گے۔ فرحان خان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ فرحان، کیا اپڈیٹ سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، اس وقت جو ہے وہ میں مین نمائش چرنگی کے اوپر موجود ہوں۔ یہاں پہ جو ہے وہ تحریک لبیک پاکستان کراچی ڈویژن کی جانب سے جو ہے وہ ریلی رکھی گئی تھی۔ پرامن احتجاجی ریلی کو جو ہے وہ یہاں سے شروع آغاز ہونا تھا، یہاں سے جو ہے وہ ریلی کو الیکشن کمیشن آفس تک جو ہے وہ جانا تھا، لیکن یہاں پہ جو ہے وہ جیسی کارکنان جو ہے وہ یہاں پہ جمع ہونے لگے تو وہ پولیس کی جو ہے بھاری نفری یہاں پہ پہنچی اور انہوں نے جو ہے وہ کارکنان کو حراست میں لیا۔ ابھی جو ہے وہ مزید ابھی یہاں سے اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ 2 کارکنان کو جو ہے مزید یہاں پہ پولیس کی جانب سے حراست میں لیا گیا ہے۔ وہ 2 کارکنان یہاں پہ بائک پہ پہنچے تھے، ایک کے جو ہے وہ ٹی ایل پی کا بیچ بھی لگا ہوا تھا۔ جیسے وہ یہاں پہ پہنچے ہیں پولیس کے کارکنان نے ان کو فوراً دیکھا ہے اور یہاں پہ جو ہے وہ ڈی آئی جی ایس پی جو ہے وہ فوراً سے آئے ہیں اور انہوں نے ان کو چیک کیا۔ جب باقاعدہ چیک کیا تو وہ ٹی ایل پی کے کارکنان تھے، تو ان کو بھی جو ہے وہ فوراً سے حراست میں لے کے جو ہے وہ یہاں کے قریبی جو ہے وہ تھانے جو ہے وہ منتقل کر دیا گیا۔ اب تک جو ہے وہ پولیس ذرائع کے مطابق جو ہے وہ 7 سے زائد جو ہے وہ کارکنان کو جو ہے یہاں سے پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، جن کو جو ہے وہ قریبی جو ہے وہ حیدرآباد اور فیروز آباد اور بریگیڈیئر تھانے جو ہے وہ لے جایا گیا ہے۔ جبکہ جو ہے وہ یہاں آج جو ہے وہ ٹی ایل پی سمیت جو ہے وہ دیگر جو ہے وہ سیاسی جماعتوں نے جو وہ انتخابی نتائج کو نہ ماننے کے حوالے سے جو ہے وہ احتجاجی ریلی کا جو ہے وہ آج اعلان کیا تھا۔ آج جو ہے وہ ٹی ایل پی کی جو ہے وہ نمائش چرنگی کے اوپر 1 بجے جو ہے وہ ریلی نکالنی تھی، 1:30 بجے کے تقریباً جو ہے وہ یہاں پہ شرکا جو ہے وہ کارکنان جو ہے وہ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ جیسی کارکنان جمع ہوئے پولیس کی بھاری نفری یہاں پہ پہنچی ہے اور انہوں نے جو ہے وہ کارکنان کو جو ہے وہ حراست میں لیا۔ کچھ کارکنان جو ہے وہ یہاں سے فرار ہونے میں بھی کامیاب ہوئے، جبکہ کچھ جو ہے وہ پولیس کے تحویل میں آئے اور ان کو جو ہے حراست میں لے لیا گیا۔ ابھی جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ نمائش چرنگی کے اوپر پولیس کی جو ہے وہ بھاری نفری موجود ہے۔ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ احتجاج جو ہے وہ کسی بھی قسم کی جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو جو ہے وہ بگڑنے نہیں دیا جائے گا۔ کارکنان کو جو ہے وہ پرامن طریقے سے جو ہے وہ احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کو جو ہے وہ یہاں سے جو ہے وہ حراست میں لیا جائے گا اور قریبی جو ہے وہ تھانے منتقل کیا جائے گا۔ جی
करीबी थाने मुंतकिल किया जाएगा। इजाज़त जो है वो नहीं मिल रही है, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त नहीं मिल रही। हिरासत में लिया गया है। आजिज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आजिज़, फरहान जैसे बता रहे हैं वहाँ पर तो हिरासत में लिया है काफ़ी ज़्यादा कारकुनान को। आपके पास क्या सूरत हाल है? अगर वहाँ एहतजाज के लिए आते हैं तो वहाँ भी इस तरह से पकड़ धक्कड़ होगी? जी, यहाँ पर बाकायदा तैयारियां हैं। इस वक्त मेरे साथ बड़े पैमाने पे आंसू गैस के शेल लाए गए हैं, यकीनन जिससे ये अंदाज़ा हो सकता है कि लाठीचार्ज भी यहाँ पर हो सकती है। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर आंसू गैस के शेल भी बरसाए जा सकते हैं। ये सूरत हाल बन सकती है, लेकिन ये इसका दारोमदार उस एहतजाज पर मुनहसर है जो जमात इस्लामी की जानिब से किया जाएगा। अगर एहतजाज में कोई बड़े पैमाने पे कुछ किया गया तो यकीनन फिर रेजिस्टेंस भी होगी, उनको रोका भी जाएगा। अगर एहतजाज पुरअमन रहा तो शायद कुछ उसको पुरअमन रहने दिया जाए, लेकिन यहाँ पे तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस की तरफ से एहतजाज को रोकने की मुकम्मल तैयारियां कर दी गई हैं। पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। आंसू गैस के शेल के बड़े बड़े डब्बे भर के यहाँ पे लाए गए हैं। आंसू गैस के गन भी लाए जा रहे हैं। तो इससे ये अंदाज़ा तो हो रहा है कि पुलिस हर किस्म के माहौल को सामना करने के लिए तैयार रहेगी। उसमें फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन एहतजाज क्योंकि अभी तक शुरू नहीं हुआ है तो इस बारे में हम अभी कुछ भी नहीं कह सकते। कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन तैयारियां भरपूर हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज ही किया जा रहा था, जहां पर कहा यह जा रहा है, जहां पर फरहान मौजूद हैं कि वहां पर पकड़ धक्कर हुई है, हिरासत में लिया गया है, लेकिन वो तो पुरअमन एहतजाज करे थे। अगर ऐसा ही सिलसिला रहा तो क्या मनाजिर होंगे? अगला लाएअमल क्या होगा? एहतजाज का दायरा कार वसी कर दिया जाएगा? देखिए, पुरअमन एहतजाज तो बिल्कुल जमहूरी मुआशरों में सबका हक होता है, लेकिन मसला तब होता है जब पुरअमन एहतजाज पुरतशद्दुद बन जाता है। अगर एहतजाज पुरतशद्दुद बन गया, अगर कुछ किया गया ऐसा, तो यकीनन फिर पुलिस भी एक्शन करेगी, फिर पुलिस भी कार्रवाई करेगी। पुलिस हर कार्रवाई के लिए तैयार रहती है। मैं आपको थोड़ा सा मंजर भी दिखा देता हूँ। या आप मेरे इस साइड पे मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कैमरा को पैन करेगा। आप देख सकते हैं ये पुलिस अलर्ट खड़ी है, आंसू गैस के शेल लिए हुए यहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर। जमात इस्लामी के कारकुनों की आमद का भी एक सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। अगर कारकुन यहाँ आते हैं, पुलिस से यहाँ एसएसपी साजिद सदोजई, एसएसपी साउथ, वो खुद भी यहाँ पर आए थे। उनसे जो हमने पूछा तो वो यही कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर एहतजाज में गड़बड़ हो गया, एहतजाज पुरतशद्दुद हो गया तो फिर यकीनन पुलिस भी एक्शन लेगी। जी ठीक है, आजिज़ जमाली हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। फरहान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, जैसे कि आजिज़ जमाली हमें अपडेट करें हैं, वहाँ पर शेलिंग और आंसू गैस के जो है इक़दाम किए गए हैं। वहाँ पर सामान जो है इस वक्त एहलकारों के पास मौजूद हैं। आप जहाँ पर हैं वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या लोग वहाँ से वापस चले गए हैं या मज़ीद तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल यहाँ पे जो है वो इस वक्त सूरत हाल ये है कि टीएलपी के जो है वो अभी तक यहाँ पे जो है वो कोई भी कारकुनान मौजूद नहीं है। जैसे जैसे अगर कोई कारकुनान आ रहा है या अगर वो ये जाहिर कर रहा है कि मैं टीएलपी का कारकुन हूँ, तो उसको पुलिस जो है फ़ौरन अपनी तहवील में ले रही है। इस वक्त जो है वो यहाँ पे पूरी जो है वो नुमाइश चलेंगी कि चारों अतराफ जो है वो पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। पुलिस अपनी जो है वो लाठी और डंडों के साथ यहाँ पे जो है वो मौजूद है। पुलिस का सिर्फ यही मौक़िफ़ है कि किसी भी तरीके से जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को जो है वो बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कोई भी कारकुनान अगर यहाँ पे आता है और यहाँ से रैली की शक्ल में इलेक्शन कमीशन की तरफ जाता है तो उसको नहीं जाने दिया जाएगा। उसको यही नुमाइश चुरंगी के ऊपर जो है वो हिरासत में ले आके जो है वो करीबी थाने जो है वो मुंतकिल किया जाएगा। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे जो है वो 100 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो है यहाँ पे मौजूद हैं, जो अपनी ड्यूटी पर खड़े हुए हैं और जो है वो निगरानी रखे हुए हैं कि किसी भी किस्म के किसी भी कारकुन को यहाँ पे रैली की सूरत में आगे जाने ना दिया जाए। जी, रैली की सूरत में आगे जाने ना दिया जाए। बहुत ही ज़्यादा हम देख रहे हैं। आजिज़ जमाली, टाइम दिया गया था 3 बजे रैली निकाली जाएगी, तीनों जमात इस्लामी की तरफ से भी कहा गया था। तो अब तक क्या सूरत हाल है? क्या लोग वहाँ पर आना शुरू हुए हैं या पहले ही उनको कॉल दे दी गई है कि वो किसी दूसरी जगह पर चले जाएं?
जी हाँ, यहाँ पे पीटीआई के कुछ कारकुन अब पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर कबल मैं कैमरामैन मेरा जो है कोशिश कर रहा है कि वो कैमरे को उस तरफ ले जाए जहाँ इस वक्त पीटीआई के कुछ खवातीन कारकुन जो हैं वो जमा हो चुकी हैं और वो नारेबाजी कर रही हैं। कुछ चंद कारकुन हैं, कोई बहुत बड़ी ज़्यादा तादाद नहीं है, लेकिन चंद कारकुन ऐसे जमा हो चुके हैं जो इस वक्त इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका ताल्लुक पीटीआई के साथ है। चूँकि जमात इस्लामी की रैली का जो वक्त था वो 3:30 बजे था। जमात इस्लामी के कुछ मकामी रहनुमा यहाँ पर पहुँच चुके हैं। जमात इस्लामी के कारकुन भी मुझे कुछ नज़र आ रहे हैं। जमात इस्लामी की जानिब से एक ट्रक भी यहाँ पर पहुँचा दिया गया है जिसपे साउंड सिस्टम नस्ब है। तो ये सारा इस वक्त एहतजाज तकरीबन शुरू तो हो चुका है। एहतजाज की तैयारियां थी, लेकिन एक हद तक यूँ कहा जाए तो ये इलेक्शन कमीशन के बाहर अभी एहतजाज शुरू हो चुका है। पीटीआई के कारकुन यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं, उन्होंने नारेबाजी भी शुरू कर दी है। अलबत्ता जमात इस्लामी के कारकुन अभी तक नहीं पहुँचे हैं, उनका 3:30 बजे का वक्त दिया हुआ था। अभी तक कारकुनान वहां पर नहीं पहुंचे हैं, 3:30 बजे का वक्त दिया गया था। फरहान खान भी हमारे साथ मौजूद हैं। फरहान, अब क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कारकुनान जो हैं वो वहाँ क्या अपडेट्स हैं इनकी? जी बिल्कुल, इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि कारकुनान तो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन जो है वो एक अफरा तफरी का जो वो आलम मच गया था, जिसके बायस जो है वो नुमाइश चौरंगी पे जो है ट्रैफिक जो है वो शदीद जो है वो जाम होता हुआ दिखाई दे रहा है दोनों ट्रैक पे जो है, क्योंकि जो है वो नुमाइश चौरंगी जो है वो एक मसरूफ तरीन शाहराह भी है। यहाँ पे ज़रा सी देर में अगर कुछ हो तो ट्रैफिक फ़ौरन जाम होना शुरू हो जाता है। जैसे ही जो है वो कारकुनान को यहाँ से पकड़ दगड़ का जो मामला शुरू हुआ, उसके बाद जो है वो पुलिस की भारी नफरी भी यहाँ पहुँची है। 100 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार जो है यहाँ पे नुमाइश चौरंगी के अतराफ जो है वो मौजूद हैं, बर वक्त यहाँ पे खड़े हुए हैं। जैसे जो है वो अफरा तफरी का आलम मचा है, तो यहाँ पे जो है वो नुमाइश चौरंगी का अतराफ मेरा आगे पीछे आप देख भी सकते हैं किस तरीके से जो है वो ट्रैफिक जो है यहाँ पे जाम हुआ है। पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं। जैसे जैसे यहाँ पे कारकुनान जो है वो अगर टीएलपी के आते हैं, अभी तक तो ज़ाहिर से पता लगा है कि जितने भी कारकुनान को इत्तला मिल रही है वो अब यहाँ पे नहीं आ रहे हैं। उनको कहा गया है कि डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पहुंचे, अब रैली की सूरत में नहीं निकाला जाएगा। लेकिन जिन कारकुनान को इस बात का इल्म नहीं है और वो नुमाइश चौरंगी पे आ रहे हैं, तो उनको फौरन जो है वो पुलिस जो है वो अपनी तहवील में ले रही है और हिरासत में ले रही है। जी, और ये भी बताएगा कि ट्रैफिक की रवानी काफ़ी मुतासर हो रही है, उसको रवा दवा रखने के लिए ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ पर मौजूद है? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस भी मौजूद है और कुछ पुलिस के एहलकार भी जो है वो अपनी तरफ से जो है वो ट्रैफिक बहाल कराने में जो है बिल्कुल कोशिशें हैं। यहाँ पे जो है वो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार के साथ जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी मौजूद हैं, जो कि जो वो रफ्ता रफ्ता जो है वो किसी भी किस्म से जो अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो उसको बहाल करा रहे हैं। इस रूट पर भी, इसके दूसरे रूट पर भी, और जो पीछे मेन नुमाइश चौरंगी है वहाँ पर भी जो है वो ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मौजूद हैं और साथ साथ पुलिस एहलकार भी जो है वो खड़े हुए हैं। और जो है वो ट्रैफिक अगर ज़रा सा भी जाम हो रहा है तो उसको फ़ौरन बहाल कराने की कोशिश की जा रही है। किसी भी किस्म की जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। पुलिस का यही मौक़िफ़ है। किसी भी तरीके से जो वो सूरत हाल को जो है वो अपने पुरअमन तरीके से जो है वो यहाँ पे मैनेज किया जा रहा है। फरहान खान हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। आज जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। आज जैसे फरहान बता रहे हैं वहाँ पर ट्रैफिक जो है वो जाम रही है, लेकिन ट्रैफिक एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस एहलकार भी वहाँ पर मौजूद हैं जो कि रवानी जो है ट्रैफिक की वो रवा दवा रखे हुए हैं। आपके पास क्या सूरत हाल है? और ये भी बताइएगा कि 3:30 बजे का कहा गया है कि वहाँ पहुँचें, तो जमात इस्लामी के जो अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईमुर रहमान भी वहाँ पर पहुँचेंगे, कोई खिताब भी करेंगे, मुतालबात भी अपने सामने रखेंगे? नहीं जी, हाफिज़ नईमुर रहमान तो अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचे हैं। अलबत्ता यहाँ पर जमात इस्लामी के दीगर रहनुमा ज़रूर पहुँचे हुए हैं। पीटीआई के कोई 20 से 25 कारकुन हैं जो यहाँ पहुँच चुके हैं, जो इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं। इनमें ख़वातीन कारकुनों की एक बड़ी तादाद है जो नारेबाजी कर रही है, जबकि जमात इस्लामी के कारकुन अभी जमा हो रहे हैं। जमात इस्लामी ने अपना बाकायदा एहतजाज शुरू नहीं किया है। अलबत्ता पीटीआई के कारकुनों ने यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर अपना एहतजाज शुरू कर दिया है। जहाँ तक बात है ट्रैफिक की, तो मेन जो शाहराह है इलेक्शन कमीशन के बाहर, उस पर एहतजाज हो रहा है। ट्रैफिक में खलल तो ज़रूर है, लेकिन ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया बाकायदा तौर पे। पुलिस या इंतज़ामिया की तरफ से ट्रैफिक को बंद नहीं किया गया है। अलबत्ता मुजाहिरीन की वजह से, मुजाहिरीन जो सड़क पर खड़े हैं, तो उस वजह से ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम ज़रूर हो रहा है। यहाँ पे ट्रैफिक जाम होने लगा है, लेकिन इंतज़ामिया की तरफ से ट्रैफिक को बंद नहीं किया है। कारकुनों ने एहतजाज शुरू कर रखा है, ख़ासतौर पे पीटीआई के जो कारकुन हैं वो एहतजाज कर रहे हैं। पीटीआई की ख़वातीन कारकुनान एहतजाज कर रही हैं इस वक्त।
یہ جو ہے جمع ہو رہے ہیں. یہ کچھ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین پر کہ اس طرف سے کارکنوں کی آمد کا ایک سلسلہ ہے. اب جو ہے پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہو رہے ہیں. ان کی تعداد میں دیکھ رہا ہوں کہ اضافہ ہو رہا ہے. ان میں پی ٹی آئی کے بعض رہنما بھی یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں. پی ٹی آئی کے کارکنوں کا جو احتجاج ہے وہ بڑھ رہا ہے. یہاں پہ آپ کو یہ میں اپنے اسکرین پہ مناظر دکھا سکتا ہوں کہ یہاں پہ پی ٹی آئی کے کارکن احتجاج کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن کے باہر سڑک پر یہ احتجاج ہو رہا ہے. جماعت اسلامی کے کارکن احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی یہاں پر کبھی امکان یہ ہے کہ دونوں جماعتوں کا احتجاج ایک وقت پہ ہی شاید ساتھ ہو جائے کیونکہ پی ٹی آئی پہلے سے احتجاج کر رہی ہے. جماعت اسلامی کے کارکن جو ہیں وہ احتجاج کے لیے جمع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، آج ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرتے فرحان خان ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کرتے. آپ دونوں کا بہت شکریہ. کراچی ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی. انتخابی نتائج پر سیاسی جماعتیں احتجاج اور ریلیاں نکال رہی ہیں. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کے باعث مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ بڑھ رہا ہے. اپڈیٹ کرتے چلیں، کراچی میں ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کر دی ہیں. انتخابی نتائج پر سیاسی جماعتیں احتجاج اور ریلیاں نکال رہی ہیں. تاہم ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ احتجاج کے باعث مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے. اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹریفک پولیس نے شہریوں کے لیے گائیڈ لائن جاری کی ہے. مزید بات کریں گے. شاہ زیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ زیب، اپڈیٹ کیجیے گا. جی بالکل، لیکن عام انتخابات میں جو ہے مبینہ طور پر دھاندلی کا الزام اور اس کے بعد جو ہے سیاسی جماعتوں کی جانب سے آج شہر کے مختلف علاقوں میں احتجاجی ریلیوں اور دھرنے کا جو ہے اعلان کیا گیا، جس پر ٹریفک پولیس نے جو ہے گائیڈ لائن میسج جو ہے چلایا ہے، جس پہ شہریوں کو مطمئن کیا ہے کہ آج جو ہے اس شہر میں سیاسی جماعتوں کے عام انتخابات کے نتائج پر جو ہے احتجاج اور ریلیاں جو ہے شہر میں سیاسی و مذہبی جماعت کے کارکنان کی جانب سے احتجاج کے باعث مختلف شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ جو ہے رہے گا. ٹریفک پولیس کا کہنا ہے کہ جس طریقے سے دیکھا جا رہا ہے کہ ابھی جو ہے میسیجر روڈ اور اس کے اطراف نمائش چرنگی پر اور اسی طریقے سے الیکشن کمیشن کا آفس کے صدر میں واقع ہے زینب مارکیٹ جس کو کہتے ہیں، اسی طریقے سے شاہراہوں ہے وہاں پر جو ہے شدید ٹریفک کا جو ہے دباؤ رہے گا. سے گزارش کو احتجاجی ریل کے اوقات کے سفر کرنے سے دور کریں اور اسی طریقے سے ملک میں عام انتخابات کے بعد عوام مسائل کے حل کے لیے منتخب نمائندوں کی جانب دیکھنے لگی. اعظم بستی میں شہریوں کو عوامی مسائل نے گھیر لیا. گیس بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے مکینوں کی زندگی اجیرن کر دی ہے. مزید جانتے ہیں ہماری نمائندہ ہمنا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ہمنا، اپڈیٹ کیجیے گا. بالکل جی، اس وقت میں اعظم بستی کے علاقے میں موجود ہوں جو صوبائی اسمبلی کا حلقہ 105 لگتا ہے، اور یہاں پہ جس جماعت کی جیت ہوئی ہے وہ جماعت جو ہے مسائل حل کرنے کے لیے متحرک ہوں گے. مگر اس سے پہلے جو یہاں کے شہریوں کی کیا رائے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہاں پہ بجلی اور گیس کے سنگین مسائل ہیں اور اس کے باوجود یہاں کے اضافی بلوں کی وجہ سے یہ کافی پریشان دکھائی دیتے ہیں. اور اگر یہاں کی سڑکوں کی بات کی جائے تو یہاں کی سڑکیں بھی جتنی بھی سڑکیں ہیں وہ بھی تباہ حالی کا شکار ہیں. یہاں پہ ایک مشہور سڑک ہے 100 فٹ کی سڑک کے نام سے مشہور ہے، وہ انتہائی خستہ حال ہے. کئی عرصے سے یہاں پر جو شہری اسی طرح مسائل سے گھرے ہوئے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں اور شہری موجود ہیں، ان سے ہم آپ کی بات کرواتے ہیں. جی ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کیا مسئلے مسائل ہیں جو منتخب ہوئے ہیں آپ کے نمائندے، ان سے کتنی امیدیں ہیں اور اس سے قبل جو ہے کس طرح کے مسائل کا سامنا رہا ہے آپ کو؟ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس ٹائم پہ ہم موجود ہیں مین اعظم ٹاؤن اعظم بستی کے اندر، اور یہاں پہ جو سب سے بڑا جو اس ٹائم پہ سب سے بڑا جو ایشو ہے وہ ہمارا گیس کا مسئلہ ہے. گیس جو ہے نا پچھلے تقریباً 3-4 سال سے اس کا بالکل نہ ہونے کے برابر، اور چند گلیوں میں تو ہے ہی نہیں، بالکل سرے سے ہی نہیں آ رہی. آئیے پیچھے نالا پاس میں بالکل بھی نہیں آ رہی، اور یہاں کے ایریا میں بھی بالکل غائب ہوئی ہے. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ ہمارا لوڈ شیڈنگ کا ہے. یہاں پہ لوڈ شیڈنگ یہاں پہ تقریباً 10 سے 12 گھنٹے کی جو ہے نا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، اور اس کی وجہ سے عوام بہت اذیت کا شکار ہیں، پریشانی کا شکار ہیں. اور تقریباً جو ہے اس کے بعد پانی کے بھی تھوڑے سے مسائل ہیں. لیکن جو اب نئی جو منتخب حکومت آئی ہے جس میں پیپلز پارٹی کے ہمارے سعید غنی جو رہنما ہیں اور دوسرے اسد عالم نیازی انہیں 237 سے جیتے ہیں، ان سے ہمیں بہت امیدیں ہیں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ان کا نعرہ بھی یہی تھا کہ ہم اگر وفاق میں ہماری حکومت بنے گی تو پانی، بجلی اور گیس تینوں مسئلے حل ہوں گے. اور یہ جو سیوریج اور جو آپ مین سوفر روڈ کا ذکر کر رہی ہیں، یہ بھی جو ہے اس میں مین لائن یہاں سے نالا پار کے لیے دی گئی تھی 10 انچ کی.
10 इंच के पानी की लाइन दी थी, जिसकी वजह से तबाह हुई है। मेरी सईद गनी से पर्सनल बात हुई है, सईद भाई ने बोला है कि इंशाल्लाह ताला जीत के ये वाला रोड लाजमी बनेगा, और ये रोड उन्होंने बना दिए। और भी मसाइल हल करेंगे। सईद भाई जो जीतने का उनका वो यही कहते थे कि अगर हम एनए जीत जाएंगे तो आवाम को पानी भी मिलेगा, बिजली भी मिलेगी, गैस भी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तौर पर इसी तरह नुमाइंदे, मुंतखब नुमाइंदे दावे भी कर रहे हैं जब सही मसाइल के हल होने की बारी आएगी। आपको कितनी उम्मीदें हैं कि क्या क्या मसाइल हैं आपके इलाके में, आप बताइएगा। लेकिन मेरा ख्याल है, मैं एक्स काउंसलर भी यहाँ से, फिलिप सैमुअल मेरा नाम है। अभी ये जो धांधली हुई है, यहाँ बहुत सारे ऐसे फुटेज हैं जो सईद गनी का भाई और ये हम आम अवाम है, इन्होंने मतलब ये धांधली से जीतना कोई हल नहीं है। हाल ये मुझे ये बताइएगा अवामी मसाइल क्या हैं आपके इलाके में? अवामी मसाइल ये हैं कि यहाँ गैस, बिजली, पानी, इससे पहले 5 साल पहले यहाँ लोगों पे बिल ऐसे चढ़े हुए थे, लेकिन लोगों का अगर 4 घर बिल नहीं अदा कर रहे थे तो कम से कम 10 घर परेशान नहीं थे होते। बिजली, पानी, गैस इस तरह बहाल था। लेकिन जब से इनकी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई है, तमाम लोग यहाँ परेशान ही रहे हैं, और आगे अभी अल्लाह जाने क्या होना है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, यहाँ 100 फीट की सड़क जो है काफ़ी अरसे से खस्ता हाली का शिकार है, तो वहाँ से गुजरते वक्त किस तरह की दुश्वारी को सामना करना पड़ता है आपको? ये है ना, पहले बड़ी अच्छी थी स्टार्टिंग में, जब रिसेंटली जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, उसके बाद 4 साल तक हमारे जो मुंतखब नुमाइंदे वो गायब हो गए। अभी इलेक्शन जब सर पे आ गए तो ये रोड आप जो खड़ी हुई है ना, ये बहुत बुरी हालत में था। ये तो अब रिसेंटली इन्होंने बनाया कि क्योंकि वोट भी चाहिए लोगों को यहाँ पे, तो उस निस्बत से। इसके अलावा गैस जो है, गैस तो हम भूल ही गए, सिलेंडर्स पे हमें कन्वर्ट कर दिया गया, और सिलेंडर तो आपको पता है वो भी ठीक नहीं है, हर बंदा अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो ये कि हालात बहुत बुरे हैं। सिर्फ ये 100 फुट रोड की बात नहीं, ये पूरा हल्का ही बदहाली का शिकार है, हर बंदा अपनी मर्जी से काम कर रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ और खातून भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। जी, मुझे बताइएगा, गैस के, बिजली के क्या मसाइल हैं? ये गैस के, बिजली के कितने महीने हो गए बंद कर दिए। हम सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं, 800 रुपये किलो डलवाते, महीना वो चलाते। मेरे शोहर नाबीना है, किराए का मकान है, बिजली आती नहीं है, सुबह जाती है, फिर दोपहर में नहीं होती है, शाम में नहीं होती है, ऐसे गायब हो जाती है। अब मजबूरी ये हमारे साथ ये देखें, यहाँ और भी शहरी मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप मुझे बताइएगा, बिजली नहीं होती, गैस के यहाँ पे संगीन मसाइल हैं, तो किस तरह आप लोग गुजारा करते हैं? गैस के क्या मुतबादिलात? देखिए, लकड़ी पे गुजारा हो रहा है। जिन बच्चों के हाथ में किताबें, पेंसिल होनी चाहिए, वहाँ वो लकड़ी उठाने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। सही है, अब हमारे मुल्क के फैसले बाहर वाले करेंगे, मुल्क हमारा है। सही है, बाहर वाले फैसले क्यों करेंगे? यहाँ बाहर से कोई भी बिजली के इजाफी बिलों के हवाले से क्या कहेंगे? भाई नाजायज़ है। आपका ज़्यादातर इदारे आपके जो है प्राइवेट हो चुके हैं। सही है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे आजम बस्ती के इलाका मकीन मौजूद हैं, जिन्होंने बताया कि यहाँ पे बिजली के किस तरह के संगीन मसाइल हैं। वहाँ के इलाके के जो मसाइल हैं, बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। शहरी वहाँ के काफ़ी ज़्यादा परेशानी का शिकार हैं। दूसरी जानिब शहर में अंडों की कीमतों में कमी हुई है। 50 रुपये कमी के बाद अंडे 350 रुपये फ़ी दर्जन हो गए हैं। मज़ीद बताएंगे आयमा खान। जी बिल्कुल, देखिए, गुज़िश्ता महीने हमने देखा कि अंडे की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच गई थी। 400 रुपये से ज़ायद में अंडे जो हैं वो दुकानों पर रिटेल की कीमत में फ़रोख्त किए जा रहे थे, जिसके बाद अब हम देख रहे हैं कि अंडों की कीमतों में जो है वो कमी हुई है, जिसमें हमने देखा कि अब अंडे जो हैं वो 350 रुपये फ़ी दर्जन में फ़रोख्त हो रहे हैं। तो हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, हम इनसे मज़ीद तफसीलात लेते हैं। भाई बताइएगा, गुज़िश्ता माह हमने देखा कि अंडों की कीमतें आसमान पर पहुँच गई थी, अब जो है वो अंडे की कीमतें कम हो गई, तो इसकी क्या वजूहत है और सरकारी नर्ख पे अभी भी क्यों फरोख्त नहीं हो रहा? देखिए, मतलब पहले सर्दी की वजह से रेट ऊपर था, दूसरा वो खुद रेट कमेटी रेट खोलती थी, मतलब वो खुद माफिया थी इस टाइम मौजूदा हालात। अभी तो गर्मी की वजह से रेट कम हुए, पीछे माल जमा हुए तो इन्होंने रेट कम कर दिए। अभी ये जैसे मुर्गी कटेगी तो इन्होंने वापसी उसी रेट में लेके चले जाना है, मतलब वापसी बढ़ा देंगे। रेट तो फार्म वालों के हाथ में ना, आड़तियों के हाथ में तो कुछ भी नहीं होता है। वो मतलब जितना मर्जी है रेट मतलब कर दें वो। दूसरा, हमारी सेल में बड़ा फर्क पड़ता है, उनको पता होता है कि मतलब आज वो क्या रेट चला रहे हैं। फार्म वालों को सारा पता होता है, क्योंकि वो इतना बड़ा मतलब फार्म चलाते हैं, लाखों रुपए लगाते हैं, तो उनको सारा मतलब वो रेट ही अपनी मनमानी के रेट खोलते हैं। मतलब जो रेट खोल रहे हैं वो खुद ही माफिया है ना, वो एक चीज़ खुद ही, उनसे वो पूछने वाला कोई है नहीं ना। अब सर्दी में देखें 440 रुपये दर्जन अंडा एकदम ले गए। अभी जो अंडा है 100 रुपये मतलब कम हुआ है, 350, और मजीद गिरने के चांस है, मतलब 250 या 300 तक आने के चांस है, मतलब गिरने के चांस है।
जी बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना हमारे साथ दुकानदार मौजूद थे, इनका यही कहना है कि अंडों की कीमतें जो है वो अभी मजीद कमी का इम्कान भी इन्होंने जाहिर किया है। साथ ही साथ इनका ये भी कहना था कि फार्म वाले जो है वो अपनी मनमानी रेट जो है वो मुकर्रर कर लेते हैं, यही वजह है कि सरकारी नर्ख पे जो अंडे हैं वो फरोख्त करना इनके लिए मुश्किल होता है। जी पीपल्स पार्टी सिंध से कौमी और सिंध की खवातीन और अक़लियतों की 39 नशिस्तें बआसानी हासिल कर लेगी, जिसमें 20 सिंध असम्बली और 10 कौमी असम्बली में खवातीन की 6 और सिंध असम्बली 3 कौमी असम्बली में अक़लियती खसूसी नशिस्तें शामिल हैं। मज़ीद बात करेंगे आज़ाद नौरियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त के आम इंतखाबात में भारी अक्सरियत में बड़ी तादाद में यानी सिंध से कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल करने के बाद सिंध असम्बली और कौमी असम्बली में खवातीन व अक़लियतों की मखसूस नशिस्तें जो है 39 हासिल करने की पोजीशन में आ गई है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 10 कौमी असम्बली में खवातीन की नशिस्तें हासिल कर सकती है। उन खवातीन में शगुफ्ता जुमानी, शाहिदा रहमानी, सैयदा शैला रजा, मेहताब अकबर आश्ती, मुशरत महसन, मेरे नज़र भट्टो, शाजिया सूबिया, नाज बलोच, मुदस्सर सैर कामरान और शरीरा फारूकी शामिल हैं। जबकि सिंध असम्बली में खवातीन की मखसूस नशिस्तें 20 हासिल करने की पोजीशन में भी आ चुकी है, जिसमें सीमा खुरम, तंजीला, उम्मे हबीब कमरानी, रेहाना मज़ारी, यास्मीन शाह, नुज़रत पठान, सैयदा सादिया जावेद, फरजाना हनीफ बलोच, आयशा मज़ारी शामिल हैं। इसके अलावा हिना दस्तगीर, रुखसाना परवीन शाह, हीर साइमा आगा और उम्मा सबात, अरूबा रब्बानी, खैरुन्निसा मुगल भी रुकन सिंध असम्बली बन जाएंगे। मलिया मंजूर, शाजिया उमर और शर्ली बलोच भी रुकन सिंध असम्बली मुंतखब हो जाएंगे। शहर कायद में सिंध असम्बली पर भी पतंग की ऊंची उड़ान है। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज वेबसाइट पर अपलोड कर दिए। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। असम्बली पर भी पतंग की ऊंची उड़ान। इलेक्शन कमीशन ने सिंध के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। कराची में एमक्यूएम अक्सरियती पार्टी बनकर सामने आ गई। 27 सीटें अपने नाम कर लीं। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवारों और पीपल्स पार्टी ने 10-10 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल की, जबकि जमात इस्लामी के हाथ सिर्फ 2 नशिस्तें आ सकी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने PS 129 से कामयाबी हासिल कर ली। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी PS 105 से अपनी नशिस्त जीतने में कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच हल्का PS 107 से कामयाब हो गए। पीपल्स पार्टी ने जिला मलीर की 6 में से 5 नशिस्तों में मैदान मार लिया। एक नशिस्त आजाद उम्मीदवार के हाथ आई। PS 84 पर पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच 25,348 वोट लेकर कामयाब। PS 85 पर पीपल्स पार्टी के साजिद जोखियो 27,791 वोट के साथ जीत गए। PS 86 पर पीपल्स पार्टी के राजा अब्दुल रज़ाक 15,017 वोट लेकर फातेह बने। PS 87 पर पीपल्स पार्टी के महमूद आलम 19,230 वोट लेकर कामयाब हुए। PS 88 से आजाद उम्मीदवार एजाज खान 17,580 वोट लेकर कामयाब करार पाए। PS 89 से पीपल्स पार्टी के सलीम बलोच 25,326 वोट लेकर जीत गए। PS 90 से MQM के शारिक जमाल 35,609 वोट लेकर कामयाब हुए। PS 91 से जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक 23,499 वोट लेकर कामयाब। PS 92 से आजाद उम्मीदवार वाजिद हुसैन 28,276 वोट लेकर फातेह बने। PS 93 से आजाद उम्मीदवार साजिद हुसैन 20,372 वोट लेकर जीत गए। PS 94 से MQM पाकिस्तान के नजम मिर्जा 24,161 वोट लेकर कामयाब। PS 95 से पीपल्स पार्टी के फारूक आवान 16,386 वोट लेकर कामयाब। PS 96 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद उवैस 16,997 वोट लेकर कामयाब। PS 97 से MQM के शौकत अली 4,997 वोट लेकर जीत गए। PS 98 से MQM के अरसलान परवेज 13,903 वोट के साथ फातेह। PS 99 से MQM के फरहान अंसारी 26,658 वोट लेकर कामयाब। PS 100 से MQM के मोहम्मद उस्मान 21,970 वोट लेकर फातेह बने। PS 101 से MQM पाकिस्तान के मुईद अनवर 43,080 वोट लेकर कामयाब। PS 102 से MQM के मोहम्मद आमिर सिद्दीकी 25,330 वोट लेकर कामयाब। PS 103 से MQM के फैसल रफीक 15,870 वोट लेकर कामयाब। PS 104 से MQM के मोहम्मद दानियाल 30,465 वोट लेकर कामयाब। PS 106 से आजाद उम्मीदवार सज्जाद अली 20,658 वोट लेकर कामयाब। PS 108 से MQM के मोहम्मद दिलावर 20,014 वोट लेकर कामयाब। PS 110 से आजाद उम्मीदवार रेहान बंदूकड़ा 47,450 वोट लेकर फातेह बने। PS 111 से पीपल्स पार्टी के लियाकत आसकानी 29,396 वोट लेकर कामयाब ठहरे। PS 112 से आजाद उम्मीदवार सरबलंद
خان 16,287 वोट लेकर कामयाब। PS 113 से MQM के फहीम अहमद 24,465 वोट लेकर कामयाब। PS 114 से आजाद उम्मीदवार मोहम्मद शब्बीर 21,531 वोट लेकर कामयाब। PS 115 से आजाद उम्मीदवार शाहनवाज जदून 20,609 वोट लेकर फातेह बने। PS 116 से पीपल्स पार्टी के अली अहमद 7,085 वोट लेकर कामयाब हुए। PS 117 से MQM के शेख अब्दुल्ला 11,154 वोट लेकर फातेह बने। PS 118 से MQM के नसीर अहमद 9,740 वोट लेकर कामयाब। PS 119 से MQM के अली खुर्शीदी 22,020 वोट लेकर कामयाब। PS 120 से MQM के मज़ाहिर अमीर 35,789 वोट लेकर कामयाब। PS 121 से MQM के एजाजुल हक 25,454 वोट लेकर कामयाब। PS 122 से MQM के रेहान अकरम 48,170 वोट लेकर कामयाब। PS 123 से MQM के अब्दुल वसीम 17,526 वोट लेकर फातेह ठहरे। PS 124 से MQM पाकिस्तान के अब्दुल बासित 31,035 वोट लेकर कामयाब। PS 125 से MQM के आदिल अस्करी 63,807 वोट लेकर कामयाब। PS 126 से MQM के इफ्तिखार आलम 38,729 वोट लेकर कामयाब। PS 127 से MQM के मोहम्मद मुआज महबूब 23,389 वोट लेकर कामयाब। PS 128 से MQM पाकिस्तान के ताहा अहमद खान ने 34,417 वोट लेकर मैदान मारा। PS 130 से MQM पाकिस्तान के मोहम्मद जमाल खान 38,884 वोट लेकर जीत गए। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के नताइज के फॉर्म 47 जारी कर दिए। 22 में से 15 नशिस्तों पर MQM पाकिस्तान ने कामयाबी समेट ली। आम इंतखाबात में कराची से MQM पाकिस्तान ने मैदान मार लिया। तीर भी कई निशानों पर लगा। कौमी असम्बली की 22 में से 15 नशिस्तों पर MQM कामयाब। पीपल्स पार्टी 7 नशिस्तों पर जीत गई। NA 229 से पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम 55,832 वोट लेकर कामयाब। NA 230 से पीपल्स पार्टी के सैयद आगा रफीउल्लाह 32,072 वोट लेकर जीत गए। NA 231 से पीपल्स पार्टी के हकीम बलोच 43,634 वोट लेकर फातेह करार पाए। NA 232 से MQM की आसिया इसहाक 88,260 वोट लेकर कामयाब ठहरी। NA 233 से MQM के जावेद हनीफ 1,03,967 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA 234 से MQM के आमिर मुइन पीरजादा 73,687 वोट लेकर कामयाब हुए। NA 235 से MQM के मोहम्मद इकबाल खान 20,185 वोट लेकर फातेह बने। NA 236 से MQM के हसान साबिर 38,871 वोट लेकर कामयाब करार। NA 237 से पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाजी 40,836 वोट लेकर जीत गए। NA 238 से MQM पाकिस्तान के सादिक इफ्तिखार 54,884 वोट लेकर फातेह करार। NA 239 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल 40,077 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA 240 से MQM के अरशद वोहरा 30,573 वोट लेकर जीत गए। NA 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्जा इख्तियार बेग 52,456 वोट लेकर कामयाब करार। NA 242 से MQM के मुस्तफा कमाल 71,767 वोट लेकर जीत गए। NA 243 से पीपल्स पार्टी के अब्दुल कादिर पटेल 60,266 वोट लेकर फातेह बने। NA 244 से MQM के डॉक्टर फारूक सत्तार 20,048 वोट लेकर कामयाब करार पाए। NA 245 से MQM पाकिस्तान के सैयद हिफ्जुद्दीन 57,356 वोट लेकर कामयाब ठहरे। NA 246 से MQM पाकिस्तान के उम्मीदवार सैयद अमीनुल हक 74,672 वोट लेकर कामयाब। NA 247 से MQM पाकिस्तान के ख्वाजा इजहारुल हसन 64,945 वोट लेकर जीत गए। NA 248 से MQM पाकिस्तान के खालिद मकबूल सिद्दीकी 1,03,000 से जायद वोट लेकर फातेह बने। NA 249 से MQM के अहमद सलीम सिद्दीकी 77,529 वोट के साथ कामयाब हुए। NA 250 से MQM पाकिस्तान के फरहान चिश्ती 79,925 वोट लेकर जीत गए।